So meaning of regression. Regression is a measure of average relationship between two or more variables in terms of original units of the data. तो रिग्रेशन अगर मैं एक सिंपल से एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एस्टिमेट है, प्रिडिक्ट है, हमें फ्यूचर के लिए समझना है, सोचना है कि अगर एक वैल्यू दे रखी है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी. So regression is a measure of average relationship between two or more variables in terms of original unit of the data. Meaning of regression analysis. Regression analysis is a statistical tool है to study the nature and extent of functional relationship between two or more variable and हमें estimate करना है, predict करना है unknown values को of independent variables. Now we talk about the dependent variable. The variable which is used to be predicted on the basis of another variable is called dependent variable या उससे हम explained variable बोलते हैं. तो dependent variable क्या है? The variable which is used to be predicted, जिसको हमें predict करना है on the basis of another variable, क्योंकि आपको another variable दे दिया है तो उसको आप बोलते हो dependent variable. and dependent variable का दूसरा नाम है explained variable. Now independent variable, the variable which is used to predict on the basis of another variable is called independent variable or explanatory variable. The variable which is used to be predict, हमें predict करना है on the basis of another variable पे, तो उसे हम बोलते हैं independent variable या उसका दूसरा नाम है explanatory variable. Type of regressions. So there are totally three type of regressions है. First is simple regression. The regression analysis confined to study of only two variables at a time. तो जब आप दो variables को at a time study करते हो उसे कहते हैं हम simple regression. Multiple regression, the regression analysis for studying more than two variables at a time. जब आप two variables at a time पढ़ते हो तो उसे आप कहते हैं multiple regression. Now what is linear regression? If the regression curve is a straight line, then there is a linear regression between two variables under study. तो उसे आप बोलते हैं linear regression. Now what are the steps to find the regression line y on x? क्योंकि दो है, एक होता है y on x, दूसरा होता है x on y. तो first is find the arithmetic mean of x and y, जिसे आप बोलते हैं x bar and y bar. पहले तो आप वो फाइंड करेंगे. Find the regression coefficient by using the formula. So byx is equal to हो जाएगा covariance xy upon variance of x, और आप बोल सकते हैं byx is equal to covariance xy upon sigma x square वेरिएंस को. फिर byx is equal to है sigma x minus x bar y minus y bar upon sigma x minus x bar का होल स्क्वायर. Another formula byx is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y divided by n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर. byx is equal to होता है r sy upon xx. That depends upon the formula, depends on the situations. आपको इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है उसके हिसाब से आप b की फॉर्मूला यूज करोगे. byx को हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x. Then bvu is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v divided by n sigma u square minus sigma u का होल स्क्वायर. तो स्टेप 2 में हम कोई भी एक फॉर्मूला इंफॉर्मेशन के हिसाब से b यूज करेंगे. देन स्टेप 3 हम a फाइंड करेंगे. तो a को फाइंड करने का फॉर्मूला है y बार माइनस byx into x बार. स्टेप 4
लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये था हमारा y ऑन x। So moving towards the step to find the linear regression x on y. Find the arithmetic mean of x and y. First x bar and y bar. Step 2, find the regression coefficient by using the formula. So bxy is equal to covariance xy upon variance of y, or bxy is equal to covariance xy upon sigma y का whole square. bxy is equal to होता है r multiply by sx upon sy. Then bxy is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon sigma y minus y bar का whole square. bxy is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y divided by n sigma y square minus sigma y का whole square. buv is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v divided by n sigma v square minus sigma v का whole square. Step 3, find a. तो a is equal to x bar minus bxy y bar. Step 4, लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y फाइंड करना है, तो x bar x कैप इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो ये थी हमारी फॉर्मूला बेस्ड ऑन x on y। Now what are the properties of linear regression? The first is two regression equations. There are two linear regression equations. First is regression equation on y on x, and second is x on y. Product of regression coefficient. The product of two regression coefficient is equal to the square of the correlation coefficient. तो हमने पढ़ा था b r is equal to byx into bxy. So that is the product of two regression coefficient. तो ये जो टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो दैट इज बी वाई एक्स बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे और उसका रूट निकालोगे तो आपको आर मिलेगा। साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स ऑल हैव द सेम साइन। इनकी जो साइन है वो सेम रहती है। दैट मीन्स आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई, दिस इज माइनस तो ये भी माइनस होगा, इफ दिस इज प्लस तो ये भी दोनों प्लस ही होंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं होता, तो इनकी जो साइन है वो हमेशा सेम रहती है, सेम साइन। इंटरसेक्शन इट मींस व्हेन टू रिग्रेशन इक्वेशन x on y and y on x, तो ये लाइन है सपोज y on x और दूसरी इक्वेशन है x on y, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन होता है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम x बोलेंगे, ये इंटरसेक्शन को y बोलेंगे। तो जो y मिला उसी को हम y बार बोलते हैं और जो x मिला उसी को हम x बार बोलते हैं। So the regression line always intersect at their means. That means कि आप जो ये x और y फाइंड करोगे उसी को आप बोलते हो x बार, एंड y जो आपने किया उसी को आप बोलते हो y बार। तो यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जो हमने फाइंड किया
दैट इज x इक्वल्स टू x बार बोलेंगे एंड y इक्वल्स टू y बार बोलेंगे. Now talk about the slopes. The slopes of regression line y on x and regression line x on y are respectively bxy and byx कहते हैं. तो जो स्लोप है रिग्रेशन लाइन y on x है एंड रिग्रेशन लाइन x on y है, तो स्लोप हम बोलते हैं, I make the correction over here. This is byx and this is known as 1 divided by byx. The slope of regression line is of y on x का है byx एंड अगर आपको स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन x on y फाइंड करना है तो आप उसे कहते हैं 1 अपॉन byx. एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन, द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस डिपेंड करता है हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर. अगर r का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं कि जब आप ग्राफ बनाते हो और ग्राफ पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो जब ये लाइन इंटरसेप्ट करती है तब ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है. तो जब ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो एट दैट टाइम r इक्वल्स टू 0 होता है. r इक्वल्स टू +1 और -1. ये कब होगा? जब आपकी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब इसी पे ही दो लाइन है, एक है y on x और दूसरी है x on y एंड इट इज गोइंग अपवर्ड, तो तब आपकी r की वैल्यू +1 हो जाएगी. और जब वो नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, और दोनों लाइन जब डाउनवर्ड गए तब आपकी r की वैल्यू हो जाएगी -1. सो r की वैल्यू +1 एंड -1 हो सकता है कब? कि जब वो कोइंसाइड हो ईच अदर. कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर. byx and bxy are independent of change of origin but not of scale. Now, so u is equal to x minus a upon h and v is equal to y minus b upon k. Then byx equals to k upon h dbvu हो जाएगा एंड bxy is equal to h upon k buv. तो कहने का मतलब है कि आपको u दे दिया गया है x माइनस ए अपॉन एच, v दे दिया है y माइनस बी अपॉन के. तो तब बी वाई एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एच होगा. ध्यान रखना है कि x से पीछे, अगर x से पीछे तो x के नीचे आपने h लिखा है तो सबसे पहले h आ जाएगा. और बाद में आ जाएगा k ऊपर एंड देन y के प्लेस पे आप सबसे पहले v लिख दोगे और x की प्लेस पे u रख दोगे. सेम वे अगर आप देखेंगे तो v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन के. तो बी एक्स वाई पीछे था y, तो y के नीचे आपने k दे रखा है, इसलिए सबसे पहले k आ गया, फिर ऊपर h आ गया. x पहले है इसलिए u आया, y है इसीलिए v आया. The formula has to be remembered. Now the important points. It is a mathematical relationship between two variables which are known as independent variable and dependent variable कहते हैं. It is used to estimate the dependent variable. हम हमेशा रिग्रेशन में dependent variable को फाइंड करते हैं. Equation y on x is used to minimize the vertical distance. हम हमेशा y on x कब यूज करेंगे? जब मुझे वर्टिकल डिस्टेंस के एरर को कम करना है तब. इक्वेशन x on y
इज यूज टू मिनिमाइज, कब करेंगे जब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब होता है ये और वर्टिकल का मतलब होता है ये। तो जब हम लोग को वर्टिकल डिस्टेंस को कम करना है तो तब हम यूज करेंगे वाई ऑन एक्स, और जब हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कम करना है तो तब हम यूज करेंगे इक्वेशन एक्स ऑन वाई। इन द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स में बी वाई एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जस्ट। बी वाई एक्स इज द रेट ऑफ चेंज माना गया है इन द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब अगर आपको x की वैल्यू चेंज करनी है तो y जितने से चेंज होगा, मतलब y का एक यूनिट x की वैल्यू को चेंज करेगा। इन द रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y is equal to a plus bx है। तो a रिप्रेजेंट करेगा y intersect which indicate that the average value of the dependent variable when x is 0। तो a जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि y को इंटरसेक्ट करेगा at which they indicate the average value of dependent variable when x is 0। 1/b/x रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन एक्स ऑन वाई। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्स ऑन वाई का स्लोप क्या होगा, दैट इज 1/b/x। So bxy is the rate of change in the value of x for a unit change in the value of y। 10th पॉइंट में लिखा है कि इन द रिग्रेशन इक्वेशन x on y, x की वैल्यू होती है a प्लस बी वाई। तो a रिप्रेजेंट करेगा x इंटरसेक्ट जो इंडिकेट करता है द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन y इज इक्वल टू 0 हो। अगर बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, देन बी वाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। वैसा वर्षा कि अगर बी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तब बी वाई एक्स की वैल्यू होगी लेस देन 1। बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई मॉड्यूलस के अंदर में डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस आर होता है। इफ आर इज इक्वल टू 0, then regression lines are always perpendicular to each other। if r is equal to plus minus 1 है, then regression lines are coincide है और identical। both regression coefficient and correlation coefficient have same sign होती है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमेशा अफेक्ट करता है बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल से। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसे आप कहते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल से उसे अफेक्ट होता है, मतलब आर की वैल्यू से। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। लाइन ऑफ रिग्रेशन हैव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक्स बार एंड वाई बार। पॉइंट नंबर 20 सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है, ये आपकी स्टडी में रिलेटेड नहीं है। एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन इज tan थीटा से डिनोट होता है। अगर इसको फाइंड करना हो तो फॉर्मूला है बी वाई एक्स प्लस इंटू बी एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई। एंड 21 डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू को हम एरर या रेसिड्यू कहते हैं। तो दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेट किया, it is greater than 0, then error is positive। if observed minus estimated is less than 0, then error is negative।
over here sign less than क्या, observed minus estimated equals to 0, then error is 0 बोला जाएगा. तो ये थे आपका रिग्रेशन की थ्योरी का पार्ट. You people have to say me the answer. If the coefficient of correlation between x and y is 0.28, so R has been given to you 0.28. Covariance between x and y is 7.6 and variance of x 9 है, तो sx की वैल्यू 3 है, आपको sy फाइंड करना है. So R is equal to covariance xy sx into sy. R 0.28, covariance 76, 3 into sy. So 76, 3 multiplies 0.28. So 0.28 multiplied by 3, 0.84. 76 divided by 0.84 is 90.47. Sorry, this is 0.28. मैंने भूल से 78 लिख दिया. तो 0.28 multiplied by 3 is 0.84, नहीं बराबर है. सर ऊपर 7.6 करना. 7.6 है. So 7.6 divided by 0.84 will give me the answer 9.05. So option C is the answer. In 18, this will be covariance UV, sigma U, sigma V. So that means R find करना है. So 3, 4.5 का स्क्वायर रूट कर दो, या 4.5 into 5.5 दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो यू विल गेट 4.97 एंड देन डिवाइड मल्टीप्लाई उसको 3 से कर देंगे, डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट 0.603. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4.5, 5.5, so 3 divided by under root, so 4.5 multiply 5.5 कर दिया, so that comes to 24.75. अब फिर उसका रूट निकालूंगा तो I will get 4.97. चलिए रिग्रेशन का एमसीक्यू है. द लाइन x is equal to a plus by रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन इक्वेशन. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो x is equal to a plus by है, तो ये x on y को रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन इक्वेशन. द y is equal to a plus bx represent the regression equation of y on x, x on y both are null. The answer goes to a, y on x. The regression coefficients are 0 है. If r is equal to, तो regression coefficient 0 होगा कब? जब आपका r भी 0 होगा तभी पॉसिबल है. byx is called regression coefficient of y on x. bxy is called the regression coefficient of x on y. The slope of regression line y on x is represented by byx. Since the correlation coefficient r is the dash of two regression coefficient byx and bxy.
तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो उसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स ऑल हैव द सेम साइन। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन मीट कहाँ पे करता है, एक्स बार एंड वाई बार पे करता है। आपको मैंने ये डायग्राम बना के बताया था। तो ये मीट करेगा एक्स पे वाई पे, दिस इज नोन एज वाई बार एंड दिस इज नोन एज एक्स बार। टू रिग्रेशन लाइन को इनसाइड। तो को इनसाइड के लिए भी मैंने बताया था कि या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी या ये दोनों लाइन नीचे होंगी, तो इसे हम कहते हैं सी प्लस वन और माइनस वन। If x and y satisfy the relation y is equal to minus b plus 7x, the value of r क्या होगी। तो r की वैल्यू डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है इसीलिए r की वैल्यू जो है वो प्लस वन होगी। क्योंकि हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं। फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स क्या होगी। ओके, नाउ रिमेंबर ओवर हियर, और ये आप फॉर्मूला में लिख भी लेना कि जब भी मुझे ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो, वी यूज टू से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और मुझे बी वाई एक्स निकालना है, देन आई विल राइट डाउन बी वाई एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये शॉर्टकट है एमसीक्यू के लिए कि अगर मुझे फाइंड करना हो बी वाई एक्स फ्रॉम द इक्वेशन से, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो टू है, इसलिए आ जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई थ्री। सो थ्री आ गया, सो माइनस टू अपॉन थ्री इज द आंसर। नहीं तो अगर मैं मेथड से गया तो मेथड से हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी, थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी माइनस टू एक्स, y is equal to minus 50 divided by 3 minus 2 divided by 3x, और y is equal to होता है a plus bx। तो b की वैल्यू यहाँ से मिलती, मतलब मुझे कितने स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, और अगर मुझे याद है तो मैं यहाँ से इमीडिएटली फाइंड कर सकता हूँ। सेम वे इसका उल्टा भी ये हो सकता है कि अगर मुझे बी एक्स वाई बोलेंगे फाइंड करने, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x हो सकता है। तो बी एक्स वाई के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इन द लाइन y is equal to 19 minus 5x upon 2, तो byx equal to क्या होगा। सो y is equal to 19 minus 5 by 2x बोला है, byx फाइंड करना है, तो y is equal to होता है a plus bx। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b की जो वैल्यू है वो माइनस 5/2 है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। 14, in the equation x is equal to 35 by 8 minus 2y by 5, तो x is equal to a plus b y। तो यहां से इसकी वैल्यू ले लोगे तो माइनस टू बाई फाइव वाई हो जाएगा। क्योंकि आपको बी एक्स वाई बोला है, बी एक्स वाई हमेशा वाई के साथ कोएफिशिएंट होता है इसके लिए। इफ टू रिग्रेशन लाइन आर गिवन, आपको एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने क्या बोला था, एक्स बार किसको बोलते हैं एक्स को, और वाई बार किसको बोलते हैं वाई को। सो दैट मीन्स यू हैव बीन गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द वैल्यूज ऑफ वाई। मैं दो इक्वेशन को एग्जाम में सॉल्व नहीं करने बैठूंगा और फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करूँ फिर फाइंड करूँ एक्स की वैल्यू क्या वाई की वैल्यू क्या। इससे अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, जीटीओ में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे टू और यहाँ पे वन। सो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन होगा, द आंसर इज नो।
तो इसका मतलब ये होगा कि पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं। अब चलो दूसरा ट्राई करते हैं। तो दूसरा ट्राई किया तो दूसरे में यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। तो 3 2 जा 6 एंड 1 7 हो गया। तो फिर अब आप आगे ट्राई करोगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 12 हो गया। यस, तो यू से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे हमें वापस वो नहीं लिखा है बोथ, इसलिए फिर हम आगे सॉल्व करेंगे नहीं। 16, out of the two lines of regression given x plus 2y and this, आपको फाइंड करना है कि कौन सा रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई। चल अब यहाँ पे एक और हम कंसेप्ट को समझेंगे। अब सपोज मान लेते हैं कि हमें दो इक्वेशन दिया है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट a1 a2 b1 b2, a1 a2 की साइन सेम होनी चाहिए, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, साइन सेम होनी चाहिए, नॉट वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट साइन, प्लस माइनस की साइन सेम होनी चाहिए। a1 a2 की वैल्यू साइन सेम होनी चाहिए, b1 b2 की वैल्यू साइन होनी चाहिए। a1 को b1 से कुछ लेना देना नहीं है या b2 से लेना देना नहीं है, a अलग है b अलग है। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 मल्टीप्लाई b2, a2 मल्टीप्लाई b1 किया, और अगर पता चला कि a1 को मल्टीप्लाई करने से b2 से उसकी वैल्यू लेस देन आती है a2 b1 से, देन इक्वेशन 1 है y ऑन x एंड इक्वेशन 2 है x ऑन y। नाउ अगर a1 a2 इज ग्रेटर देन a2 b1 आया, देन इक्वेशन 2 बन जाएगा y ऑन x एंड 1 बन जाएगा x ऑन y। तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए हमें जो दे रखा है देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमें दे रखा है x प्लस 2y4 2x 3y प्लस 5। तो a1 b1 a2 b2, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू तो 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है एंड b2 की वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 हो गया। दैट मीन्स 3 इज लेस देन 4, मतलब ये है केस 1 लेस देन। और हमें फाइंड करना है एक्स ऑन वाई, मतलब इक्वेशन 2 है एक्स ऑन वाई। व्हाट इज इक्वेशन 2? 2x plus 3y minus 5 is 0. So that means I say that option A is the answer. If the coefficient of correlation between two variable is minus 0.2, मतलब r की वैल्यू दे दी है माइनस 0.2, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, मतलब मुझे r स्क्वायर करना है, तो माइनस 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, तो आई विल गेट ऑप्शन सी 0.04। If the correlation of coefficient of correlation between two variable is minus 0.9, so coefficient of determination, that is r square, so 0.9 minus का square is option B 0.81, because minus का square भी plus हो जाएगा। r की वैल्यू है 0.6, then coefficient of non determination क्या है? So that means we say that r is equal to 0.6, तो 1 minus r square चाहिए नॉन डिटर्मिनेशन में, तो 0.36 माइनस हो जाएगा 0.64। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। Find the coefficient of correlation when its probable error is 0.2, number of pair of item is 9. So probable error is given 0.2 and is given 9. So हमारी probable error में फॉर्मूला थी 0.6745 under root 1 minus r square upon n. So this is the formula of probable error.
और अब इसके अंदर में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड गेट द आंसर। सो द फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, अंडर रूट इज इन डाउन और ये मल्टीप्लाई। So probable error will be 0.6745 multiply 1 minus r हमें ढूंढना है, तो r square upon root 9 and probable error की जगह पे I am writing 0.2. So 0.2 multiply 3 divided by 0.6745, whatever the answer come minus हो जाएगा 1 से। So calculate जिंदाबाद, 0.2 multiply 3 divided by 0.6745 equal to -1 equal to, तो -0.11045। कैलकुलेटर पे प्लस माइनस का एक बटन होगा, पहले तब उसको दबा देंगे और उसके बाद रूट का बटन दबाएंगे, तो यू विल गेट 0.332 which is your answer. So I say that option B is the answer. When one regression coefficient positive, मतलब कि BYX या BXY दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव है, देन अदर वुड बी, तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। BYX and BXY आर नेगेटिव, तो R का वैल्यू क्या होगा? तो R का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, बिकॉज R, BYX and BXY have the same sign. 23. When R is 0, the regression line कट करती है एक दूसरे को, तो 0 में हम लोग ने पढ़ा था परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज अ 90 डिग्री, तो इसीलिए आंसर इज 90 डिग्री, एंड दैट इज नॉट पैरेलल टू दिस, ये गलत है, यहाँ पे आपको करेक्शन करके ये वाला सिंबल देना है, परपेंडिकुलर टू OX एंड OY। The line y is equal to 13 minus 3x is a regression equation. ये किसकी equation है? Y equals to a plus bx की, that is y on x. So we say that option A is the answer. X is 31 by 6 minus 5 by 6 is the regression equation of, so x equals to a plus by, so that is x on y, 2x plus 5y minus 9 0 है, 3x minus y is equal to 0 है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, मीन ऑफ x एंड y फाइंड करना है। ऑप्शन जिंदाबाद, पहले 1 एंड 2 है तो ये x और ये y है, तो 1 रखा 2 रखा, तो 2 प्लस 10 11 11 2 प्लस 10 12 12 माइनस 9 0 नहीं होता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। फिर रखा 2 2 2 2 जा 4 होता है, 5 2 जा 10 होगा, 14 में से 9 क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल। फिर 2 1 रखना, तो 2 2 जा 4 5 1 जा 5, तो 4 प्लस 5 9 9 माइनस 9 0 हो गया। So we say that option C is the answer. 27. For the values, the regression equations are this. दो इक्वेशन दे दिया गया है। After finding an arithmetic mean of x and y, कंप्यूट करना है r की वैल्यू, मतलब यहाँ से आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, तो r की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि byx क्या होता है, bxy क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले a1 की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, a2 की वैल्यू 4 ले लेता हूँ फ्रॉम ईयर, b1 की वैल्यू ले लेता हूँ -3, देखो आगे माइनस है, और यहां से b2 की वैल्यू आएगी -1। सो नाउ
A1 मल्टीप्लाई B2 होगा, A2 मल्टीप्लाई B1 होगा। तो 7 मल्टीप्लाई -1 -7, 4 मल्टीप्लाई -3 इज -12। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इज लेस देन 12। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो y ऑन x है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो x ऑन y है। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने यहां से आपको इक्वेशन दिया था कि अगर मुझे बी वाई एक्स फाइंड करना है इक्वेशन से, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स 7 अपॉन को एफिशिएंट ऑफ वाई 3, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 7/3। फ्रॉम हियर बी एक्स वाई फाइंड करेंगे। सो बी एक्स वाई से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई -1 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, तो दैट इज 1/4। और अब r फाइंड करना है, तो √7/3 इंटू 1/4, बिकॉज बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई होता है, तो 7/12। तो 7 को 12 से डिवाइड करो और फिर उसका रूट निकालो, तो 0.7638। सो जो हो जाता है ऑप्शन बी को। And the 28, the last question. Given the following data, mean x bar, y bar, variance 4 है तो sx2 है, वेरिएंस 9 है तो sy3 है। r दे दिया गया है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 90? ओके, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर एस वाई अपॉन एस एक्स। आर की वैल्यू दे दी गई है 0.6, एस वाई की वैल्यू 3, एस एक्स की वैल्यू 2, सो आई विल गेट 0.9। फिर a की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहिए y बार बी एक्स बार। तो y बार की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 0.9, x बार है 80। सो 80 मल्टीप्लाई 0.9, 72। सो माइनस में आंसर है 64। I make a correction over here. 0.6 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 18 आएगा, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 0.9, बराबर ही है। नाउ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू a की जगह पे -64, b की जगह पे 0.9 इंटू 90। So 90 multiply 0.9 is 81, and 81 में से आपने 64 को माइनस किया तो आई एम गेटिंग 17। I think some calculation mistake. Let us check it out again. 80 and 80 है, yes. नहीं, सब कुछ बराबर ही है। Let's see. अगर कुछ करेक्शन कर सकते हैं तो देखते हैं कहीं पे। Do one thing, make a correction over here. Write down over here 190. अगर इसको हमने 190 कर दिया तो ये हो जाएगा 190। So 190 multiply 0.9 is 171, and 171 में से आप 64 को माइनस करोगे तो you will get 107. So option B is the answer.